اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سپارہ سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، الف لام میم یہ ان کا مطلب ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اللہ ہے، لا نہیں، الہ اس کے سوا، الا ہوا مگر ہے وہی، حی القیوم حی زندہ، قیوم ہمیشہ رہنے والا، قائم۔ نزلہ نازل کیا، علیہ کا آپ کی طرف، کتابہ ایک کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، مصدقا لما بین، مصدقاً تصدیق کرتی ہے وہ کتاب، لما بین جو درمیان میں ہے، یدیہ تمہارے ہاتھوں کی، وانزل التوراۃ اور نازل کیا تورات کو، والانجیل اور انجیل کو بھی نازل کیا، من سے قبل اس سے پہلے، ہدی للناس ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور نازل کیا کس کو؟ فرقان، فرق کرنے والی ایک کتاب کو، ان الذین اور جو لوگ کافر ہوئے جنہوں نے انکار کیا، بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، لاہم ان کے لیے ہے، عذاب شدید دردناک عذاب ہے، واللہ اور اللہ، عزیز ذو انتقام عزیز غالب، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یخفا چھپاتا، مخفی نہیں ہے، علیہ شیء اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں، هو الذی وہی ہے، یصورکم جو بناتا ہے تمہاری صورتیں، فی الارحام تمہارے پیٹ کے اندر، کیفا کیسے، یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی، الا مگر، ہوا وہی ہے جو العزیز الحکیم غالب بھی ہے، حکیم حکمت والا بھی ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ تو ہم نے سورۃ البقرہ کی آخری آیت دیکھی تھی، جس کی آخری آیت کا ترجمہ تھا کہ اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا مولا و مددگار ہے، اور سو ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو آج یہ ہے سورۃ آل عمران دعا میں، اس دعا کے جواب میں اس کی یہ آیت پیش کی گئی ہمارے لیے، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں، جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجران کے عیسائیوں پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ اب وہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ 9 ہجری میں نجران کے ساتھ ایک عیسائیوں کا وفد آیا، وفد میں 10-12 لوگ ہوتے ہیں، ایک گروہ ہوتا ہے، وہ آیا، ان کا سردار تھا عاقب عبد المسیح، اور ان کا ایک عالم تھا ابو حارثہ بن علقمہ۔
तो उन्होंने कई रोज़ मदीने में आकर क़याम किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मनाजरा करने लगे, यानी सवाल करते थे फिर जवाब लेते थे। तो कई दिन ये सिलसिला चलता रहा। वो कभी कहते थे कि हज़रत ईसा अल्लाह हैं, कभी कहते वो अल्लाह के बेटे हैं, और फिर कभी कहते वो तीन में के तीसरे हैं। ये अकीदा तसलीस की बहस बता रहे हैं। अकीदा तसलीस कहते हैं अरबी में तीन को, वाहिद एक, इस्नान दो और सलासा कहते हैं तीन। तो अकीदा तसलीस के रद्द में ये आए थे लोग, यानी इन लोगों ने अकीदा तसलीस की बात की थी कि यानी खुदा कितने हैं, तीन हैं, या फिर खुदा के साथ तीन यानी लोगों को वो खुदा का दर्जा देते थे, जैसे इस बहस में बताया जा रहा है। तो इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बताते कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो सिफ़ात हज़रत ईसा में नहीं है, क्योंकि वो नबी हैं और खुदा है। तो वो ये कभी तस्लीम करते, कभी इनाद करते, कभी इनकार करते। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता। आखिर उन्होंने कहा कि आप हज़रत ईसा को कलीमुल्लाह, यानी वो हज़रत ईसा जो हैं कलामतुल्लाह और उसकी पसंदीदा रूह नहीं मानते। आप हज़रत ईसा का जैसा मर्तबा अल्लाह ने बनाया है वैसा तस्लीम नहीं करते। उनका ये एतराज़ था। आपने फरमाया क्यों नहीं, सो अल्लाह ताला ने इस सूरत के शुरू में इससे ज़्यादा आयात इनके रद्द में नाजिल फरमा दी, और ये ईसाइयों की बदअकीदगियों का रद्द फरमाया कि अल्लाह ताला के जो वो बेटे और बीवी का एतकाद रखते हैं उसके कवी दलाइल से उनका रद्द फरमाया कि अल्लाह कौन है, वल्लज़ी, अल्लाह वही है, ला इलाहा, जिसके सिवा और कोई इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो इस तरह हज़रत मरियम, उनके बेटे हज़रत मसीह की पैदाइश का भी इस में तफसीली ज़िक्र आगे आएगा, वो भी इसी रद्द में आएगा। तो ये असल में जो है इसीलिए इन आयतों से इब्तदा की गई, क्योंकि अल्लाह ताला की वहदानियत वो उनको बताना ज़रूरी था। वो अकीदा उनका बिगड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो फिर इसीलिए अल्लाह ताला ने इन आयात से इब्तदा ली कि अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत का मुस्ताहिक नहीं, वो हमेशा से ज़िंदा है और तमाम यानी इस निज़ाम हाकिम पर कायम रहने वाला है। हर चीज़ फनाफिल्ला है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात की। अल्लाह ताला की ज़ात अज़ल से है और अब तक रहेगी। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने जो है आपकी तरफ यानी जो किताब नाजिल की वो सच के साथ और हक के साथ नाजिल की, और किताब से मुराद बिलाशुबा कुरान पाक है। कौन सी किताब है? कुरान पाक है। अब यहाँ पर सिर्फ किताब का जिक्र है, कुरान का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। यानी नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़ की, नाजिल किया आपकी तरफ किताब को हक के साथ। तो यहाँ जो किताब है उससे बिलाशुबा बगैर किसी तफसीली तहमीद के यही है कि ये कुरान पाक की किताब है। तो क्योंकि ये किताब वो है जो हक के साथ तमाम बातों की तस्दीक करती है अल्लाह ताला की तरफ से, जो पहले हो चुका, जो चीज़ें गुजर गई उनकी भी, क़यामत तक जो चीज़ें आएगी उनकी भी तस्दीक कुरान पाक में मौजूद है। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिमा बैना यदैहि, जो तुम्हारे हाथों के दरमियान है, यानी जो हमारे हाथ में होता है उसकी भी तस्दीक करती है, जो नहीं होता उसकी भी तस्दीक करती है। फिर फरमाया कि अल्लाह ही ने नाजिल किया तौरात को भी और इंजील को भी और ज़बूर को भी। लेकिन यहाँ किताब तौरात और इंजील क्यों नहीं हो सकती? इसकी वजह यह है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि तौरात और इंजील और ज़बूर में उन्होंने रद्द बदल कर दिए, अपनी मर्ज़ी की उसमें चीज़ें निकाली और चीज़ें शामिल कर दी। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे कि नहीं, वो तो गए हुए हैं। हाँ, ड्रेसिंग पे पड़ी है या बेड पे। अच्छा, खामोशी इख्तियार करें, मैं आगे पढ़ाती हूँ। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
کہ اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور اس نے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی نازل کیا اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور فرقان فرق کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کو نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب منتقم یعنی انتقام لینے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن پاک آپ تمام یقیناً جانتے ہوں گے کہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل کیا گیا، احکام اور حالات کی مناسبت سے اس کو نازل کیا گیا، لیکن اس میں جتنی بھی مستقبل، ماضی، حال کی پیشن گویاں ہیں وہ تمام صادق ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے وعد اور وعید بھی صادق ہیں۔ وعد کہتے ہیں وعدہ، یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے جنتوں کی، یہ آپ کا اللہ کا وعد ہے۔ وعید کیا ہے؟ جیسا کہ اسی آیت میں بھی ہے کہ اللہ نے کہا جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وعید عذاب اور وعد خوشخبری وہ بھی تمام صادق ہیں، اور اس کے بعد مقدار، کیفیت، جو جو چیزیں بھی ہیں وہ تمام حق ہیں اور یہاں پر اس کتاب میں موجود ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات آئی ہوئی ہے کہ بھئی تورات اور جو بائبل کی کتابیں ہیں ان کو حق کا یعنی کیوں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے اس میں اپنی مرضیاں شامل کی، ان میں رد و بدل کر دیے، احکامات جو پسند تھے ان کو تو انہوں نے رکھ دیا، جو پسند نہیں تھے ان کو انہوں نے مٹا دیا، اور پھر وہ بنٹ بھی بہت زیادہ حصوں میں گئیں۔ اور ایک مثال کے طور پر تورات ایک موجودہ بائبل بھی ہے، ایک عہد نامہ قدیم ہے، ایک عہد نامہ جدید ہے، پھر ان کے بھی الگ الگ انہوں نے حصے بنا دیے ہیں۔ مختصراً یہ کہ وہ تمام جو کتابیں ہیں تو وہ بھی الہامی، لیکن وہ اپنی اصل حالت سے ہٹ چکی ہیں اور ان کو ان لوگوں نے اپنی مرضی سے ہٹا دیا ہے۔ لیکن قرآن پاک یہ واحد الہامی کتاب ہے جس میں ایک شد مد کی بھی رد و بدل یا تبدیلی نہیں کی گئی، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے قیامت تک، اور نہ ہی کوئی اس چیز کی کوشش کرے گا اس میں تبدیلی کرنے کی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی یعنی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ ہے کہ علم محیط یعنی جتنے بھی علم ہیں تمام پر اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کلیات، جزیات، ہر بڑی اور چھوٹی چیز کو جاننے اور پہچاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں زمین اور آسمان کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے اور پہچاننے والا ہے، اور جن چیزوں کا یعنی ہم مشاہدہ کرتے ہیں سب سے بڑی ان میں آسمان اور زمین ہی ہے نا، تو ایک مثال دی ہے کہ آسمان اور زمین تک کو اللہ جانتا ہے تو ان کی کلیات اور جزیات کو بھی اللہ جانتا ہے، اور تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ یہ وہ اللہ کی حکمت ہے جو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، کہ ایک خون، ایک پانی کے قطرے سے اللہ کیسے ایک جان بنا دیتا ہے، اور وہ جان پلتے پلتے ایک انسانی روپ اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ قدرت، یہ کمال، یہ طاقت صرف اللہ ہی کی ہے۔ جتنا کوئی دنیا میں ترقی کر جائے لیکن اللہ کی اس قدرت کا مشاہدہ تک نہیں کر سکتا کہ آخر اللہ کیسے ایک ماں کے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے پالتا ہے، پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں یہ اسی کا کمال قدرت ہے، اور کوئی اس میں نہیں عمل دخل کر سکتا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اسی کو سجدہ کرو، اسی کے آگے گڑ گڑاؤ، اس کے علاوہ عبادت کا مستحق بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ بہت بڑی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کی جو حکمتیں ہیں وہ انسانی عقل سے بالا ہیں، یعنی ہم اگر سوچیں کہ ہم اللہ کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی آپ چھوٹی سی مثال ایسے لے لیں، ہمیں کوئی چیز بڑی ہی پسند ہوتی ہے،
لیکن اچانک ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے ہاتھوں سے غائب ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، یا کچھ بھی آپ سمجھ لیں، تو کچھ عرصے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی۔ تو یہ حکمتیں بھی اللہ جانتا ہے کہ ضروری نہیں جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہو وہی ہمارے لیے بہتر ہو، اور اللہ سے اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو تو یہ الفاظ کہو کہ یا اللہ مجھے جو بھی دینا وہ میرے حق میں بہترین ہو۔ تو یہ بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیات ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ هو الذي، وہی اللہ ہے، انزل، جس نے نازل کیا، علیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب، منہ، اس میں، آیات محکمات، محکم آیتیں بھی تھیں، ہن الکتابی، یعنی جو اس کتاب کی اصل یعنی بنیاد، پھر وآخر، دوسری آیتیں تھیں اس میں متشابہات، فاما الذین، پھر وہ لوگ جو فی قلوبہم، جو دلوں میں رکھتے ہیں، زیغ، کجی، فیتبعون ما تشابہ، انہوں نے کیا کیا کہ ان جو متشابہ آیات تھیں ان میں فتنہ جوئی کی، منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، اور اس میں متشابہ کے در پہ در رہے، اس میں تعویل تبدیلیاں کرتے رہے، وما یعلم، اور جو لوگ علم والے تھے، تأویلہ الا اللہ، یعنی پھر اللہ کہتا ہے کہ اس چیز کا کسی کو علم نہیں کہ ان میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے، وہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون، پھر ماہر علم والے کہنے لگے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ تمام محکم متشابہ آیات ہیں جتنی بھی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اب یہ آیات محکمات اور متشابہات کے ذکر میں ہیں، آپ پہلے ایک میں آیت سے آپ کو مثال دوں گی، آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی کہ محکم اور متشابہات آیات کون سی ہیں قرآن پاک میں۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے سورۃ النساء کی، آیت نمبر 171، اس میں ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها الی مریم روح منہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، مسیح عیسیٰ مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اللہ کی طرف سے وہ روح ہے، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اب عیسائیوں نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہا کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ اور اس کی روح کہا ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ کے یعنی بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں دوسری آیت نازل فرمائی، وہ قرآن مجید میں محکم آیات بھی ہیں، متشابہات آیات بھی ہیں، یعنی جیسے اس آیت میں اللہ نے وضاحت کی کہ عیسیٰ کون ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہے، اس کا کلمہ ہے، جس کو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ جب عیسائیوں نے اس آیت کو لیا تو متشابہ میں پڑ گئے کہ کہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہاں پر لکھا ہوا ہے نا روح اور اللہ کا کلمہ، تو انہیں لگا اللہ نے حضرت عیسیٰ کی جتنی وضاحت کی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ میرا کلمہ ہے، تو یہ انہیں متشابہ پڑ گیا۔ تو اسی طرح حکم کے معنی منع کرنا، حکمت کو حکمت اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل اس کے خلاف منع کرتی ہے۔ محکم جو آیات ہیں ان میں حکمت ہوتی ہے، یعنی عقل ماننے کو تسلیم نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ایک اور آیت سے آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آیتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں،
अल्लाह ताला हर चीज़ से पाक है। अल्लाह ताला सोने से पाक है, हाथ से पाक है, चलने फिरने उठने बैठने इन चीज़ों से अल्लाह ताला पाक है। ये हमारा अकीदा है। लेकिन कुरान पाक में कहीं अल्लाह ताला ने अपने हाथ का भी जिक्र फरमाया है और कहीं अल्लाह ताला ने ये जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला आसमानों पर नाजिल है। तो उससे कुछ लोगों ने मुराद लिया कि शायद हो सकता है कि अल्लाह ताला एक जिस्म की मानी हो, लेकिन अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। तो ये जो मुतशाबे पड़ता है ये भी आयतें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, कुरान पाक में मौजूद हैं। लेकिन उससे अगर हम उस पर डट जाएं जैसे ईसाइयों ने किया, वो उन्होंने इसी आयत को तो पकड़ लिया कि इसमें अल्लाह ने लिखा है कि ईसा मेरा कलमा है, तो फिर हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हो गए। उन्होंने ये मुतशाबे पकड़ लिया। लेकिन इसके रद्द में अल्लाह ने जितनी आयतें फरमाई उनको वो इग्नोर कर देते हैं। अब मुहकम आयात भी कुरान में हैं और मुतशाबे आयात भी कुरान में मौजूद हैं। अब यहाँ पर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया मुहकमात वो आयात हैं जो नासिख हैं, और नासिख वो होती हैं जिनको हटा दिया जाता है। तो उनमें हलाल हराम हदूद फ़राइज़ का बयान है और ये कि किसी पर ईमान लाया जाए और किसी पर अमल किया जाए। मिसाल के तौर पर हमारा कुरान पाक पूरा है, इनमें से हम किसी बातों पर ईमान रखते हैं, किसी पर अमल करते हैं। कल भी मैंने आप लोग को ये बात समझाई थी कि पूरे कुरान पर हम अमल नहीं करते। अब कुरान में है कि अल्लाह ताला एक है, हम इस पर ईमान रखते हैं। कुरान में है कि अल्लाह की इल्हामी किताबें चार हैं, हम इस पर भी ईमान रखते हैं। कुरान में है कि नमाज पढ़ो, फिर हम नमाज पढ़ते हैं, हम इस पर अमल करते हैं। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़कर हम इस बात पर अमल करते हैं। यानी कुरान में तो हर तरह का हुक्म है, कुछ पर हमने अमल करना है, कुछ पर सिर्फ हमने ईमान लेकर आना है। और फिर इसी तरह कुछ आयतें वो हैं जिनमें मुतशाबे पड़ता है इंसान को, लेकिन अल्लाह ने फिर उनका रद्द भी अगली आयत में वाज़े फरमा दिया। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान फरमाया मुहकम आयात वो हैं जिनके माना उनकी तावील और तफसीर उलमा को मालूम है, और मुतशाबे आयात वो हैं जिनका माना अल्लाह ताला के साथ मुख्तस है और मखलूक में से किसी को भी उसका इल्म नहीं है। आयात मुतशाबिहात रूफ़ मक्ता जैसे अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम स्वाद, हरूफ मुकत्तियात, इनका मानी कोई भी नहीं जानता। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राज है, कोई बंदा भी इन लफ्ज़ों का मानी नहीं जानता। इसी तरह कुछ लफ्ज़ भी अल्लाह ने कुरान में ऐसे दिए हैं जिनका मानी कोई आलिम फाजिल भी नहीं जान सकता, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। किसी पर उसके मानी को क्या है कि वाज़े नहीं किया गया। आप इसकी ऐसे ले लें कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा किस वक्त नाजिल होंगे, ये बात कोई नहीं जानता। सिर्फ इतना पता है ना कि एक दौर आएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल होंगे। इसी तरह सूरज कब मगरिब से तलू होता है, कब मशरिक से निकलता है, और क़यामत कब वाक़या आएगी, इसका इल्म भी अल्लाह को है। और 6 चीज़ें मैं पढ़ रही थी ऐसी हैं कि जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह ने अपने पास रखा है। एक तो पहले क़यामत कब आएगी, किस वक्त आएगी, किस दिन आएगी, ये तो कुछ ना कुछ हमें मालूमात हैं, निशानियाँ भी हैं, लेकिन एग्जैक्ट क़यामत कब वाक़या होनी है ये कोई भी नहीं जानता, ना कोई जान सकता है, क्योंकि इसका इल्म हमें बता दिया ही नहीं गया। इसी तरह कि जो माँ के जो पेट में रहम में अल्लाह ताला एक खून यानी लोथड़ा पालता है, ये तो आजकल मशीन से पता लग जाता है कि बच्चा है या बच्ची है, लेकिन ये पता नहीं चल सकता कि वो कितने दिन ज़िंदा रहेगा और कितने दिन ज़िंदा नहीं रहेगा, या वो पलेगा या नहीं पलेगा। हो सकता है माँ के पेट में ही उसकी वफ़ात हो जाए, हो सकता है वो बाहर ही ना निकले, हो सकता है वो बाहर निकल कर 100 सालों तक जीता रहे। तो ये कोई नहीं जान सकता। इसका इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। इसी तरह रिज्क किसको कितना दिया जाएगा, इसका इल्म भी अल्लाह के पास है। हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारा रिज्क हमारे हाथ में कब आएगा, किस तरह आएगा और कितना आएगा। ये सिर्फ एक सबब और ज़रिया होता है जो हम अपना के खड़े होते हैं। हकीकत इसकी अल्लाह जानता है। और मौत का वक्त
वो भी अल्लाह जानता है। तो ये वो चंद बातें हैं जिनका इल्म अल्लाह ने अपने हाथ में रखा, अपने पास रखा, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं दिया गया। तो इसी तरह कुरान में भी कुछ लफ्ज़ हैं जिनका मतलब माना मफहूम सिर्फ अल्लाह ही जानता है, हम लोग नहीं जानते और ना जान सकते हैं। फिर अल्लाह ने कहा कि सो जिन लोगों के दिलों में कज्जी है वो फितना जोई के लिए मुतशाबिह का महमल निकालते हैं, के लिए आयत मुतशाबिह के दर पे रहते हैं। मिसाल के तौर पर वो जो हज़रत ईसा वाली आयत है, ईसाई ने उनको पकड़ लिया है, कहते हैं कि अब ईसा कौन है, वो अल्लाह के बेटे हैं, उन्होंने शिर्क किया हुआ है। हालांकि अल्लाह ताला ने तो ये भी कहा है कि मेरे अलावा कोई मेरी ज़ात के सामने खड़ा नहीं हो सकता। जो भी करेगा ऐसा वो कौन होगा, मुशरिक होगा, शिर्क करने वाला, और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। उन्हें वो आयतें नज़र नहीं आती लेकिन उन्हें ये आयत नज़र लाजमी आती है। तो फिर अल्लाह कहता है मुतशाबे के महमल को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और माहिर उलमा फिर कहते हैं हम इस पर ईमान लाए क्योंकि ये तमाम हमारे रब की तरफ से हैं। हम सिर्फ कुरान पर ईमान रखते हैं पूरे का पूरा, फिर जो अमल वाली चीज़ें हैं उनको उठाकर अमल करते हैं। हम उन महमल में पढ़ते ही नहीं है कि अल्लाह ने अगर अपने हाथ का जिक्र किया है तो क्या अल्लाह के हाथ होंगे, अगर हाथ होंगे तो अल्लाह के कितने हाथ होंगे, कैसे होंगे। ऐसा गुमान करना भी कुफ्र है, ऐसा गुमान करना भी कुफ्र है। बस हमें इतना होना चाहिए कि अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की सिफ़ात हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह की शान सबसे बड़ी सूरत अल इखलास में मौजूद है, जहाँ लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि कह दीजिए कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। उसके बाद फिर ये है कि यहाँ पर एक और मिसाल मैं देती हूँ कि अल्लाह ने फरमाया कुरान में ही है, सूरत अत-तोहा की 5वीं आयत है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर जलवा फरमा है। तो फिर इसका जो महमल निकाला जाता, कुछ लोगों ने निकाला, यानी इसमें भी मुतशाबे लगता है ना बंदे को कि क्या अल्लाह अर्श पर जलवा है तो अल्लाह मौजूद, यानी वैसे तो अल्लाह हमारे ज़ाहिर बातिन अंदर बाहर हर जगह मौजूद है, ये हमारा ईमान है, लेकिन यहाँ पर है कि रहमान अर्श पर जलवा फरमा है। अब इसमें महमल निकलने को तो बहुत सारे निकल सकते हैं। तो इस्तवा का मतलब पूछा गया तो फरमाया कि ये सिर्फ उसकी कैफियत पर महमूल है, तुम्हारा क्या काम है, सिर्फ इस पर ईमान ले आओ, इतना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। उसकी कैफियत के मुतल्लिक सवाल करना बिदअत है। इमाम मालिक के इस जवाब से भी इसकी तायद होती है। इस आयत पर वक्फ इला यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का है, यानी अल्लाह है जिसकी ज़ात में कोई शरीक नहीं है, वो अकेला इबादत का मुस्तहिक है। कभी भी ऐसी आयत पढ़कर इनकी गहराई में जाने की कोशिश ना करें, हमने सिर्फ इन पर ईमान रखना है। जहाँ कोई ऐसी आयत है जहाँ हमें मुतशाबे लग रहा हो तो उस आयत को पढ़ें, उस पर ईमान ले आएँ, उससे अगली आयत पढ़ें, उसकी गहराई में कि अब अल्लाह अर्श पर जलवा है, इसका जलवा फरमा है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि अल्लाह ताला हर जगह जलवा फरमा होता होगा, अर्श पर है तो फर्श पर भी आ जाते होंगे, अल्लाह ताला तो हर जगह है, हम तो किसी जगह का तायुन भी नहीं कर सकते। एक उस्ताद ने बच्चों से कहा कि कल जो तुम लोगों ने मतलब एक होमवर्क दिया कि कल जो है ना आप लोगों ने आकर अपनी डेली रूटीन बतानी है, अगर आप में से किसी के गुनाह करने का दिल करे तो वो वहाँ जाकर गुनाह करेगा जहाँ अल्लाह मौजूद नहीं होगा। सुबह तमाम बच्चे आए तो सब ने अपनी अपनी बात बताई, तो एक बच्चे ने आकर बताया कि ए उस्ताद मोहतरम, मुझे तो कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं, मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ वही जगह ढूंढता रह गया, कोई ऐसी जगह मुझे पाई ही नहीं गई कि जहाँ अल्लाह ना हो, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, आपने हमें कैसे इम्तिहान में डाल दिया। तो उस्ताद ने कहा कि तुम्हारा इम्तिहान भी यही था कि तुम गुनाह ना करना, क्योंकि अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर वक्त तुम्हें देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो इस तरह के मुतशाबे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आयतें हैं अल्लाह ने नाजिल भी की हैं, इनका महमल सिर्फ अल्लाह जानता है, इनका राज, इन बातों की हिकमत सिर्फ अल्लाह जानता है। हमारा काम क्या है, सिर्फ ईमान लेकर इनको पढ़ना और फिर इनसे अगली आयत की तरफ चलना।
इनमें अगर हम कहें कि हम गौर और फिक्र और तदब्बुर करेंगे तो हम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसी आयत में फरमाया अहले इल्म ये कहते हैं कि हम इन पर ईमान ले आए, क्योंकि ये तमाम आयतें हमारे रब की तरफ से हैं। तो हम भी यही कहते हैं कि हम तमाम आयतों पर ईमान रखते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से हैं, उनका महमल अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ हमारे रब हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता फरमाने वाला है। जब ये आयत नाजिल हुई तो रासिखीन फिल इल्म भी ये दुआ करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से ये दुआ करते थे। तो इसमें है हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं, इमाम इब्ने अबी शैबा, अहमद, तिरमिज़ी, जरैर, तिबरानी वगैरह कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ बहुत ज़्यादा करते थे, ऐ अल्लाह दिलों को बदलने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। और फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दिल बदल जाते हैं? तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला की मखलूक में से जिस कदर बन्नू आदम और बशर हैं, यानी जितने ज़्यादा लोग हैं, सबके दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। अगर अल्लाह चाहता है तो उन्हें मुस्तकीम यानी सीधा रखता है, और अगर अल्लाह चाहता है तो उन्हें टेढ़ा कर देता है। तो हम अपने अल्लाह से जो हमारा रब है ये सवाल करते हैं कि वो हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करे, और हम ये सवाल करते हैं कि वो ख़ास अपने से हम पर रहमत अता फरमाए, बेशक वो बहुत अता करने वाला है। तो कहती, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे एक दुआ सिखा दें जो मैं अपने लिए किया करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये दुआ करो, ए अल्लाह मोहम्मद नबी के रब मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे दिल को गैज़ को दूर कर दे, जब तक तू मुझे ज़िंदा रखे, मुझे गुमराह करने वाले फितनों से अपनी पनाह में रखे। तो ये इस तरह हमें दुआ करने का हुक्म भी दिया गया है कि ये ना समझें कि अगर हम 1-2 नेक काम कर लेते हैं तो हम बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, अब हमें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर भी रहे हैं और दुआ के कलमात भी सिखा रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर दे और साबित कदम रख हमें उस काम पर जो काम हम करते हैं, और मज़ीद हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। फिर आखिर में फरमाया कि ए हमारे रब, ये सूरत आल इमरान की आयत नंबर 9 है कि बेशक लोगों को उस दिन जमा फरमाने वाला है जिसके वकूअ में कोई शक नहीं है, बेशक अल्लाह अपने वादा के खिलाफ नहीं करता। तो ये भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, यानी दीन से टेढ़ा ना करना, इस पर हमें साबित कदम रख, अपनी रहमत से हम पर अपनी रहमत अता फरमा, क्योंकि तू बहुत अता करने वाला है। और सिफ्त के साथ अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह को वो दुआ बहुत पसंद है। यानी मिसाल के तौर पर हम अल्लाह से मग़फ़रत की दुआ मांग रहे हैं तो हम अल्लाह की सिफ्त बयान करें कि अल्लाह की सिफ्त है बख्श देना, यानी बख्शिश अता फरमाना अल्लाह की खासियत है, सिफ्त है। इसी तरह अता करना अल्लाह की सिफ्त है। तो हम इस आयत में भी अता का लफ्ज़ आया हुआ है। और फिर वाद और वईद मैं पहले भी बता चुकी हूँ। वाद वो वादे हैं जो मोमिनों से किए गए हैं, जन्नतों के, बख्शिश के, मग़फ़रत के, शफ़ाअत के, और वईद वो हैं जो काफिरों से यानी उनको अज़ाब से डराया गया और उनको कहा गया कि तुम्हें अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह अपना वादा हर हाल में पूरा करेगा। जो बंदा मोमिन नेक जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है वैसे ज़िंदगी गुजार के जाएगा, अल्लाह ने कहा है कि उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है, तो अल्लाह उसको यकीनन जन्नत में दाखिल करेगा। तो फिर अल्लाह कहता है कि मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इस आयत में भी है और एक दुआ हम पढ़ते हैं उसमें भी है, इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, अजान के बाद की दुआ में, कि वहाँ पर भी यही है कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता।
अगर अल्लाह ने कहा है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा तो यकीनन अल्लाह देने वाला है। लेकिन आगे अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कबूल करूं तो तुम मेरी भी कबूल करो। तो इस शर्त को भी देखा कीजिए। ये नहीं है कि आप समझे एक तरफा मामला है, हम मांगते रहे अल्लाह देता रहे, हम मांगते रहे अल्लाह देता रहे और हम जो है अल्लाह को सजदा भी ना करें। ऐसा नहीं हो सकता। आप मांगे भी सही, अल्लाह की सुने भी सही, फिर सुनाए भी सही, मज़ा फिर आएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक भी हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रखे और हम जो काम करते हैं अल्लाह पाक इसमें हमें हौसला हिम्मत अता फरमाए और इसमें हमारे दिल को शैतानी वसवसों नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखे और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाह।